Matters, please, matters raised with permission. Dr. V. Sivadasan. Dr. V. Sivadasan, concerned over rising use of narcotic drugs among the young adults. Respected Chair. Please. Respected Chair. Thank you. नहीं, आप EPCI पर जिस पर नोटिस दिए हैं, अगर उस पर बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। प्रमोद जी, कोई और चीज कहना चाहते हो तो मैं इजाजत दे सकता हूं। आप जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस पर आप नहीं बोल सकते। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। 0 आवर माननीय मेंबर्स के पावर है, उनके ये सूझ है। प्लीज डॉक्टर वी शिवदासन आप बोले, इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। Chair, thank you for giving me this opportunity. I would like to share. पे जा रही I would like to raise the painful situation of the rising influence of narcotic drugs in our country. Day by day, the reports have shown the increasing incidence of the use of narcotics. Sir, the reports from various sources revealed that the majority of the carriers of the narcotics are below 30. Many students and the unemployed youth are the victims of the drug mafia. They are trapping them, exploiting their vulnerability. So the usage of synthetic drugs like MDMA is increasing. Generally, we can't recognize that person is using it. Initially, there are no symptoms, but it leads to quick addiction within a short period of time, destroy the person from within. Sir, but it, sir, could you allow to speak? Please. I'm requesting the members to go back to their seat. You are raising a issue. Please continue. Sir, please continue. But it leads to quick addiction, sir. It has very serious health consequences. It leads to behavioral changes. It causes extreme depression, anxiety and aggressiveness. It destroys the physical health also. It causes cardiac shock, brain bleeding, kidney failure, rapid muscle loss, stroke and loss of teeth. Sir, the narcotic mafia have close connection to the political leadership and executives. They are able to influence the judicial system also. In India, only a very small percentage of carriers are arrested by the official agencies like Narcotic Control Bureau. Their relationship between the influential mafia and the political patrons never comes to light. Sir, they are getting political patronage because they have huge amounts of money. Our ports are the main centers of importing the raw material from narcotics. Even 1% is not being arrested. Sir, in some of the ports like Mundra, in Gujarat, the customs officials get only 4 minutes for deciding whether the cargo should be thoroughly checked. Some of the private players thinks there is less checking it with. Over. Please go back to your seats. Honorable LOP wants to speak. Please go back to your seats. First go back to your seats. Sir, I'm thankful to you because you have given me this opportunity to speak regarding particularly that this house do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication in electoral rolls. Sir, I have already given my ruling. No, it will not go on record. No, sir, आप वरिष्ठ सीनियर रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा माननीय एलओपी। मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एज पर रूल्स आप वरिष्ठ हैं, आप सारी चीजों को बताते। नो, आई एम नॉट। माननीय प्रमोद तिवारी जी, कंसर्न ओवर क्रैशिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। मानिए प्लीज, आप रूल्स जानते हैं, आप जानते हैं। प्लीज माननीय प्रमोद तिवारी जी, It's a very burning please, issue. I have already explained the rules. Then we have to walk out. Sir, the LOP's microphone. Please, Sir, the LOP's mic.
Derek ji, I have already explained the rules. Please, माननीय डेरिक जी, please, nothing is going on record. माननीय प्रमोद तिवारी, श्रीमती जेबी माथेर हिसम, demand for measures to ensure their remuneration and social security to ASA workers to Kerala. Please, speak on the subject. That will go on the record only. Please, JB Mathur Hisam, please. Dr. Sikandar Kumar, demand for construction of tunnel in Pani Valley of Chamba, Himachal Pradesh. धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की अति दुर्गम घाटी पांगी में सुरंग निर्माण करवाने संबंधी विषय लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों से सभी भली भांति परिचित हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिला चंबा की पांगी घाटी का मुख्यालय चंबा है और यहाँ आने जाने में 1 minute. Honorable members, the notices under rules 267 have not been permitted. If the members do so desire, they may submit notices under any other parliamentary device for the consideration of the chairman. Thank you. Please continue. आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला चंबा की घाटी का मुख्यालय चंबा है और यहाँ आने जाने में लोगों को वर्षों से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पांगी से चंबा आने के लिए 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित 7 पास होते हुए आना पड़ता है और अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह रास्ता साल के 4-5 महीने ही खुला रहता है और बाकी समय में पांगी वासियों को बया जम्मू, लाहौल स्पीति, अटल टनल, मनाली कुल्लू होते हुए आना पड़ता है, जो कि 500-700 किलोमीटर लंबा है और जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों ही अधिक लगता है। दूसरी ओर 7 पास से बर्फ हटाने में सरकार का हर साल करोड़ों रुपया भी खर्च हो जाता है। ऐसे में यदि चहैनी जो से सुरंग का निर्माण कर पांगी को चंबा मुख्यालय से जोड़ा जाता है तो पांगी घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय चंबा आने जाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिला मुख्यालय चंबा पांगी से 12 महीने जुड़ा रहेगा तथा पांगी के लोगों को भी मुश्किल भरे जीवन से राहत मिलेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पांगी वासी की यह मांग आज की नहीं बल्कि पिछले 50 वर्षों से यहाँ के लोग इस मांग के पूरा होने की राह देख रहे हैं। हमारी सरकार ने अटल टनल बनाकर लाहौल वासियों के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार पांगी वासियों की भी इस चिर लंबित मांग को पूरा कर पांगी घाटी के समस्त जनजातीय लोगों को राहत प्रदान करेगी। धन्यवाद। माननीय श्री विक्रमजीत सिंह शाह ने demand for stringent legislation to eradicate superstitious practices. Honorable Chairman, sir, I rise today to bring attention to a growing menace that is exploiting the trust and faith of vulnerable and innocent people. Superstition, black magic, and fraudulent practices in the name of miracles. This issue is particularly rampant in parts of North and Central India, including Punjab, where fraudulent individuals prey upon innocent people by misguiding them with the false claims of supernatural abilities and luring them for conversion. अध्यक्ष महोदय, ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर बीमारियों को ठीक करने, बुरी आत्माओं को भगाने, पुत्र प्राप्ति, विदेश जाने के झूठे वादे झांसला देके लोगों को फंसाते हैं। गांवों में रहने वाले गरीब और कम पढ़े लिखे लोग इनके चुंगल में आसानी से फंस जाते हैं। कई बार तो ये लोगों को डरा धमकाकर या छल से उनका धर्म बदलने के लिए मजबूर करते हैं। इससे न केवल परिवार बिखर जाते हैं बल्कि महिलाओं और बच्चों का इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये स्थिति हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है। महोदय, ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए समाज में डर, भय, झूठ फैलाते हैं। ये हमारे देश की एकता और भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र ने काले जादू और अंधविश्वास मिरेकल्स के खिलाफ कानून बनाकर एक अच्छी मिसाल पेश की है। अब समय आ गया है कि हम पूरे देश में ऐसे सख्त कानून लाएं जो न केवल अंधविश्वास को रोके बल्कि ऐसा कोई अंधविश्वास, जादू, चमत्कार
जो धर्म परिवर्तन की तरफ प्रेरित करे उसे रोका जाए, लेजिस्लेशन लाया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाएं और इन गलत प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने जहां अंधविश्वास, शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए कोई स्थान ना हो। हम भोले भाले लोगों की जागरूक करना होगा और उन्हें इस शोषण से बचाना होगा। I urge the government to take immediate steps to criminalize these sinister practices leading to religious conversions and ensure justice. Let's work towards enlightened, progressive society free from superstition, exploitation, and conversions. Thank you. Thank you. I'll call you Sri K. Velaji. Please wait for a minute. Leader of House, Mani JP Narahari wants to speak. सर, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों से के साथ मिलकर जो हमारे अभी वर्तमान उपस्थित हैं, एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हाउस में 267 रूल के तहत लोग सुबह सुबह नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है 8 दिसंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। इट्स ए विशियस डिजाइन to demean the institution of the parliament. They are not interested in debate. They want to give an impression that the government does not want to answer or enter into the debate. The government under Prime Minister Narendra Modi is ready to discuss anything under this roof, whatever is to be discussed. But there are certain rules, there are certain regulations. कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन। ये नियम पढ़ते नहीं। आई हैव बीन द लीडर ऑफ द बीजेपी इन हिमाचल प्रदेश in the Vidhan Sabha as an opposition, and during their regime I have got the best legislature award also. कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना तो सीखो। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come. And the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और देश को मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर तरीके के चर्चा के लिए तैयार है और देश को जिम्मेवारी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश सिर्फ इस देश की छवि दुनिया में स्थापित हुई है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हम अपने घर में सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। Honorable Sri K. Velanlona requests to resolve the problem of the National Institute of Technology in Mizoram. Please. Yeah, thank you, Honorable Chairman. Today I want to raise the problem faced by NIT Mizoram. The NIT Mizoram is one of the 10 new NIT set up by the Government of India in 2009 through an act of parliament and signified as an institute of national importance. The NIT Mizoram started functioning in 2010 from VNIT Nagpur.
as the Government of India MHRD appointed member-in-chief. The NIT Mizoram started its maiden establishment in its home state of Mizoram in July 2011, which its first batch of faculty and staff. The first batch of the 2010 students were shifted to NIT Mizoram proper. NIT Mizoram has been functioning from its temporary campus in Chalklang, Aizawl, Mizoram, from rented buildings. Pending construction completion of the permanent campus at Lengpui, Mizoram, the institution is yet functioning from 14 rented buildings at Chalklang, Tantril, and Durklang, Aizawl since its establishment in Mizoram. The land allotted by the Government of Mizoram for the establishment of NIT Mizoram is at Lengpui. During the course of initiating the primary infrastructural land development of the permanent campus, the NIT Mizoram was informed that the permanent campus land areas falls within the notified riverine reserve forest area and of the requirement to obtain forest clearance as on 27 October 2016. I wish to bring before the House about the plight of NIT Mizoram, which is yet without a permanent campus since 2010 due to forest clearance issues. It may be noted that the Ministry of Environment and Forest and Climate Change has accorded Stage 1 approval in 18 May 2023, after I had personally requested the Minister of Environment and Forest Climate Change, Sri Bhupender Yadav, for which I am truly grateful to him. But the payment of compensatory afforestation and net present value to be paid by the user agency that Government of Mizoram is yet to be paid, even though the amount has substantially been reduced by the Ministry of Environment and Forest. I wish to put on record my gratitude to the central government, Sri Bhupender Yadav Ji, Minister, for all the help he had bestowed for the development of NIT Mizoram. However, sir, with the Government of Mizoram in financial doldrums, I wish to urge the central government and the Ministry of Environment and Forest to provide full waiver on payment of CA and NPV so that NIT Mizoram can resume the infrastructural development of its campus at Lengpui at the earliest and without further delay. Thank you, Chairman. Thank you. Manya Srimati J.B. Mathur Hisham. Not present. Dr. Kalpana Saini, need for legal framework to regulate the harmful contents on social media platforms. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सोशल मीडिया पर बढ़ती गाली गलौज, अभद्र भाषा और साइबर बदसलूकी। माननीय सभापति महोदय, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनका गाली गलौज, धमकी, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और झूठी सूचनाएं फैलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आम नागरिक के साथ साथ महिलाएं, पत्रकार, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता आए दिन ऑनलाइन उत्पीड़न, चरित्र हनन और अभद्र भाषा का शिकार हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कई मामलों में ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। अभद्र भाषा और साइबर बुलिंग के कारण कई महिलाओं और युवाओं को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और कई मामलों में यह उत्पीड़न आत्महत्या जैसे दुखद घटनाओं का कारण भी बन जाता है। फेक न्यूज़, नफरत फैलाने वाले संदेश समाज में अशांति, सांप्रदायिक तनाव को जन्म देते हैं। इन्हें रोकने के लिए सख्त नियमन की आवश्यकता है। मेरी सरकार से मांग है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अभद्र भाषा को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया जाए, साइबर अपराधों के लिए तेज जांच और दंड प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए, सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट हटाने और ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाए, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए और वे साइबर अपराधों की शिकायत कैसे कर सकते हैं, महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन संरक्षण के लिए हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई तंत्र स्थापित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, यदि इस समस्या पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह समाज में वैमनस्यता और असुरक्षा का वातावरण बना सकता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस गंभीर मुद्दे पर
अविलंब ध्यान दें और आवश्यक नीतिगत निर्णय लें। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, डिमांड टू कनेक्ट पुणे विथ हाई स्पीड ट्रेन्स। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपका ध्यान पुणे की रेल कनेक्टिविटी की समस्या और हाई स्पीड ट्रेन की मांग की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। पुणे देश में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, जो विद्या की नगरी या शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। पुणे एक आईटी हब है। पुणे औद्योगिक और ऐतिहासिक नगरी भी है। पुणे बहुत ही तेज़ी से विकसित होने वाला ऐसा शहर है। लेकिन माननीय महोदय, पुणे से दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों तक राजधानी, तेजस, वंदे भारत जैसी उच्च गति ट्रेनें उपलब्ध नहीं है। इससे व्यापारियों, छात्रों और यात्रियों को बहुत असुविधा महसूस होती है। अगर पुणे से दिल्ली की ट्रेन की बात करें तो आज जो ट्रेनें उपलब्ध है, झेलम एक्सप्रेस है, गोवा एक्सप्रेस है, ऐसी ट्रेनें 26 या 28 घंटों में ये फासला तय करती है। इसमें बहुत समय भी जाता है। पुणे से राजधानी नहीं गुजरती, मुंबई जाकर राजधानी पकड़नी पड़ती है, जिससे यात्रा में यातायात, समय और खर्चा, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। दिल्ली देश की राजधानी है और पुणे एक महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दिल्ली से बेंगलुरु या दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली ट्रेनें, राजधानी ट्रेनों को प्रतिदिन या सप्ताह में 3 बार पुणे होते हुए चलाया जाए। मेरी दूसरी मांग है, पुणे से कलकत्ता जो हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस सबसे तेज़ एक्सप्रेस जो अवेलेबल है, वो 28 घंटों में अपना फासला तय करती है। इस रूट पर वंदे भारत या तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की मांग मैं करती हूँ, जिससे व्यापार और पर्यटन प्रभावित हो सके। चेन्नई और हैदराबाद ये दोनों आईटी हब है, महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन पुणे और चेन्नई के बीच तेजस या वंदे भारत नहीं है। पुणे हैदराबाद मार्ग में भी वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं है। जो अवेलेबल ट्रेन है वो 22 घंटे उसको लगते हैं। तो मैं ये मांग करती हूँ। तीसरी बात, महाराष्ट्र में भी ऐसे कई शहर हैं जो, जैसे नासिक, ये तीर्थ क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है। मुंबई जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है या तो सड़क से जाना पड़ता है, जिससे 6 घंटे लगते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पुणे से दिल्ली, पुणे नासिक जैसी ट्रेनें शुरू कर दिए जाए। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत पुणे प्रमुख तीर्थ स्थलों से भी विशेष ट्रेनें चलाई जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये मेरी बहुप्रतीक्षित रेल की मांगों को प्राथमिकता दे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। माननीय डॉक्टर जॉन ब्रिटास, concern over opening of the country's offshore sand blocks for mining by private entities. Thank you very much, sir. This is to bring to the notice of the House the alarming situation that has arisen on account of Union government's decision for offshore mining in the coastal belt of Kerala. So the entire Kerala is agitated. The Assembly passed a unanimous resolution requesting the Government of India to withdraw the decision. Sir, I will explain to you the rationale of it. The government's proposal is 35,000 crore of offshore sand mining project. In Kollam alone, that is Koilon, government intends to extract sand worth 14,200 crores. The interesting part is that Kerala government had sent its reservations, opposed the project, and said that it will have far-reaching impact on the lives and livelihood of the people. Further, the environment impact of this mining could even devastate vast chunks of land in Kerala. Sir, you will be surprised
that not even a single appropriate study on the environment or the social side has been done by the government of India. They simply relied on some geological survey saying that sand is available in offshore. So another interesting aspect, Naddaji was very vocal with regard to the democratic principles and the importance of parliamentary democracy. Naddaji, you passed an amendment in this house in the absence of the opposition, and that amendment has helped you to start this project. If you are very serious about the democratic process of this country, you would have involved not only the opposition, but the governments at the state level. Even in Gujarat, this is going to be an issue, and you are going to soon meet with resistance from Gujarat coastal belt too. Sir, please appreciate the fact that Kerala has got a ecological fragile system, and cyclones and tsunamis, there have been studies which says that such unmindful mining can cause cyclones. And further, let us understand that 8 cyclones happened in Indian Ocean in 2023. Time is over. Now, even if I allow, that will not go on the record. It's automatically built in. No, play John Brittaci. You are a very senior member. Nothing is going on record. Please. Sri S. Selvagan Vethi request for 4-lane highway between Tindivanam and Krishnagiri connecting Puducherry and Bengaluru. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I congratulate the Honorable Union Minister for Highways for the excellent road connectivity established between important cities of India. One such a plan of National Expressway NE7 from Chennai to Bengaluru at a distance of 258 kilometers will be covered in a record time of 2.5 hours journey. The total project cost is 18,000 crores. Is nearing completion. This is most welcome. Sir, the highway from Krishnagiri to Bengaluru is a link between Puducherry and the Bangalore highway. At present, the road connectivity from Krishnagiri to Bangalore via Hosur is a 6-lane road, whereas the national highway NX66 from Krishnagiri to Kadalur via Puducherry is expected to be connected by 4-way lane highway. But the 187-kilometer link between Dindivanam and Krishnagiri is a 2-lane road, which is a busiest road connecting Tiruvannamalai. It is a pilgrimage center. Due to the 2-lane road connectivity, many accidents are taking place, especially during the night time, as many number of passenger vehicles, buses and lorry are using the said road to transport people and cargo movement from Bangalore to Puducherry via Krishnagiri. Considering the flow of traffic in this region at the time itself, the government would have planned to lay a 4-lane road in between Dindivanam and Krishnagiri. It has been failed. Puducherry being a tourist destination filled with a French essence, lot of tourists from Bangalore, Mysore and many places from Dindivanam state are finding it very difficult to reach Puducherry and back more comfortably and safely. Especially during the weekend, the entire road between Dindivanam and Krishnagiri are flooded with tourist vehicles and omnibuses to reach Puducherry at the weekend. Further, the government in India is also planning to set up a port under the Sagarmala project. This opens course for cargo transport from Puducherry to Bangalore and various places in Tamil Nadu. In this background, with the available road connectivity, it is totally impossible to handle the situation considering the flow of traffic. The only solution to address this problem is to convert the 2-lane road from
Dindivanam to Krishnagiri into a 4-lane highway. Then only it will ease the traffic flow and reduce the running time more considerably. Thank you. It's over now. Mani Shri M. Muhammad Abdullah. Mani Shri M. Muhammad Abdullah, not present. Mani Shri Neeraj Dangi. Mani Shri Neeraj Dangi, not present. Dr. Ashok Kumar Mittal. Demand for amendment in table of precedence to accord higher precedence to impeach. धन्यवाद महोदय कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है जो संसद और हमारे सांसदों की गरिमा और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। सर, भारत सरकार द्वारा टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बनाया गया है जो एक प्रोटोकॉल सूची है जिसमें एमपीज, एमएलए, एमएलसीज, सरकारी अधिकारियों को लिस्ट किया जाता है। आज के दिन जो सूची है उसमें सांसदों को इस सूची में 21वें स्थान पर रखा गया है और यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो 55 स्थान पर है क्योंकि एक रैंकिंग में एक से ज़्यादा पद भी आते हैं। सर, हमारी लोकसभा का एक सांसद एवरेज 25 लाख लोगों को और राज्यसभा का सांसद 60 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50% वोट इलेक्टोरल कॉलेज में सांसदों के होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो 100% वोट सांसदों के होते हैं। संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री का चुनाव भी सांसदों द्वारा ही किया जाता है। लेजिस्लेचर के तौर पर हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए कानून बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं और उन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर करते हैं। यहाँ तक कि संविधान में कोई संशोधन होना है उसका अधिकार भी सांसदों को ही है। ऐसे ही डिफरेंट फोरम्स पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, इंटर पार्लियामेंट्री काउंसिल हो। सर, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, यूएसए, जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सांसद राष्ट्रपति नहीं चुनते, वहाँ भी सीनेटर को 13वें स्थान पर रखा गया है। इसी तरह फ्रांस में सांसदों को भी 13वें स्थान पर रखा गया है। सर, सांसद बनने का अधिकार हमें संविधान ने 1950 में दिया, लेकिन उसके बाद और कई स्टैट्यूटरी पद आए, जैसे चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो 85 में बना, उसका चेयरमैन भी हमसे ऊपर है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि एक अधिकारी हैं भारत सरकार में, उनका रैंक भी 11वां है। सर, मैं इसलिए निवेदन करूंगा सरकार से कि सांसदों की गरिमा को बहाल करने और उनको एक अच्छा अनुभव कराने के लिए टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में अमेंडमेंट की जाए, संशोधन किया जाए और कम से कम सांसदों को 11वें नंबर पर रखा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल अनुपस्थित। श्रीमती रेखा शर्मा, concern over the problems faced by ASHA workers appointed under National Health Mission. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, I rise today to bring to the attention of this House a matter of concern. The low wages and lack of financial security for ASHA workers across the country. ASHA workers serve as backbone of our rural and community healthcare system, acting as crucial link between the government and the people. They are responsible for implementing key healthcare initiatives, including maternal and child health services, immunization drives, disease prevention program, and various welfare schemes. Despite the indispensable role of improving public health, ASHA workers continue to receive meager honorarium that do not reflect the importance of their work. Many of them work tirelessly without fixed salaries, relying only on incentives that are often delayed and insufficient. They lack essential social security benefits such as pension, healthcare system, insurance, and maternity benefit, leaving them vulnerable and financially insecure.
During the COVID-19 pandemic, ASHA workers played a frontline role in managing health crisis, conducting door-to-door screening, spreading awareness, and ensuring vaccination coverage, often taking great personal risks. Sir, I urge the government to take immediate steps to address the long-standing issue. ASHA workers must be provided with fixed monthly salary in addition to their incentives, ensuring fair compensation for their invaluable services. Moreover, they should be brought under the coverage of social security schemes such as employee state insurance, health insurance, to safeguard their future. There is also need to set up structured mechanism to review their wages periodically and address grievances related to the payment delays. Honorable Chairman, sir, I urge the government to take decisive action and increase their salary to ensure that they continue to serve the nation without financial distress. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री संतोष कुमार पी, need for providing affordable cancer treatment to economically weaker sections. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I take this opportunity to urge the government, through you, sir, to establish a nodal agency dedicated to cancer care. And I hope this would be a big step forward in controlling the cancer cases in our country. So there was an addition of 19 to 20 lakhs of cancer cases in 2022 itself. And we are grappling with an alarming rise in cancer cases. And this burden could be exceeded to 45 lakhs in the coming 5-6 years. And more cases are reporting from southern states also. So we need to step up the awareness program. And currently, the accessibility to the latest treatment in India must also be prioritized. Targeted therapies which can increase survival rates significantly should be made widely available. Sir, if we establish a nodal agency to control cancer, that would be a big step. The success seen in HIV control through the establishment of NACO, National AIDS Control Organization, is a role model. The authority serves as a promising model for similar advancement in cancer care also. Sir, I urge through you to establish a nodal agency to control the cancer in our country. Thank you. Thank you. माननीय श्री संजय सेठ, concern over rising cases of cyber crimes in the country. जी, धन्यवाद सर। सर, मैं इस सदन का ध्यान बढ़ते हुए साइबर क्राइम और बैंक फ्रॉड की तरफ उठाना चाहता हूं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है। इसमें 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांड नेम के दुरुपयोग से होंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंस हैं, जहां 8200 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। भारत में हर साल लाखों लोग डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों की कमी के कारण उनकी मेहनत की कमाई कुछ सेकंड में लुट जाती है। एक ऐसा ही मामला आया है जहां एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वर्षों से शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था और शादी के ठीक पहले उसके एक साइबर अपराधी ने सारे पैसे बैंक से निकाल लिए। उसकी हालत ये हुई कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें देखने को इस वक्त मिल रही हैं। कई बुजुर्गों की पेंशन भी उनके अकाउंट से गायब हो जाती है। छोटे छोटे व्यापारियों की पूंजी खत्म हो जाती है। जहां हम लोग देश के अंदर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही प्राथमिक होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
अनिवार्य तकनीकी अपग्रेडेशन किया जाए। छोटे और ग्रामीण बैंकों को भी अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम से जोड़ा जाए। साइबर अपराध को जांच के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले और साइबर क्राइम पीड़ितों के लिए एक कंपनसेशन फंड बनाया जाए जिससे निर्दोष लोगों की खोई हुई राशि वापस मिल सके। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि साइबर बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाए और कठोर एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि हर नागरिक की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संजय सेठ जी। डॉक्टर फौजिया खान नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री धैर्यशील मोहन पाटिल प्रेजेंट। डिमांड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी फंक्शनल डेवलपमेंट सेंटर्स इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र फॉर इट्स कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले में औद्योगिक विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता, ये मुद्दे पे अध्यक्ष महोदय मेरी अपेक्षा यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिला एक महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद एक अच्छा तटीय क्षेत्र भी इसमें अध्यक्ष महोदय है। अध्यक्ष महोदय, JNPT, धर्मतर, दिघी जैसे बंदरगाह है। दूसरे और तड़ोजा, महाड़, रसायनी जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी है। अध्यक्ष महोदय, इस जिले में कृषि उद्योग, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्र का भी बहुत अच्छा पोटेंशियल अध्यक्ष महोदय यहाँ पर माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों में स्थानिक युवकों को रोजगार मिलने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण उनको मिलके वो प्रशिक्षित होना भी अध्यक्ष महोदय बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। हालांकि अध्यक्ष महोदय, मौजूदा प्रशिक्षण सुविधा इस आवश्यकता को पूरी तरीके से समाधान करने में असमर्थ है, जिसके कारण स्थानिक युवकों को रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिला कार्य योजना अनुसार जितने कुशल कार्यबल प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, उससे कई गुना ज़्यादा कुशल कार्यबल की ये जिले को आवश्यकता अध्यक्ष महोदय है। अध्यक्ष महोदय, मेरी अपेक्षा है कि सरकार को JNPT, दिघी ये जैसे औद्योगिक कंपनियां हैं, औद्योगिक संगठन हैं, उनसे मिलकर बहुक्षेत्रीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे स्थानिक युवक और युवतियों को कुशल कार्यबल में वो प्रशिक्षित हो और जिससे स्थानिक युवकों को रोजगार मिल सके और इस जिले का समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास अध्यक्ष महोदय सुनिश्चित हो। और अध्यक्ष में जिसका ये जिला हकदार है, जिस आर्थिक प्रगति, जो सामाजिक प्रगति का ये जिला हकदार है, वो हक उसको ये जिले को मिले, यहाँ के युवक और युवतियों को मिले। नमस्कार। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, डिमांड फॉर कन्फरिंग द भारत रत्न अवार्ड पोस्टमसली ऑन द लेट डॉक्टर शंभराव देशमुख। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से देश के लिए विशेष रूप से शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्र में महान योगदान देने वाले स्वर्गीय डॉक्टर पंजाबराव शामराव देशमुख को भारत रत्न प्रदान करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। पंजाबराव शामराव देशमुख, इनका जन्म 27 दिसंबर 1898 में हुआ था, जिन्हें भाऊ साहब के नाम से जाने जाते थे। वे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में कृषि मंत्री थे और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से अतिशय गरीब परिस्थिति से आने वाले पंजाबराव जी देशमुख, इनका शिक्षण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ। वो बैरिस्टर बने। घर में घोर गरीबी के बावजूद उन्होंने यात्रा के लिए लोक सहभाग से पर्याप्त धन जुटाया और बैरिस्टर डिग्री और संस्कृत में MA ऑनर्स प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक साहित्य में धर्म की उत्पत्ति और विकास विषय के साथ उनकी PhD पूरी की। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के तहत अध्ययन किया
उन्होंने अछूतों को अमरावती के अंबा देवी मंदिर में प्रवेश की अनुमति के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने अमरावती में श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आज इस सोसाइटी में 24 डिग्री कॉलेज, 54 इंटरमीडिएट कॉलेज, 75 हाई स्कूल, 35 छात्रावास, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यह सभी बहुजन समाज के लड़कों को पढ़ाते हैं। 1952 से 1962 तक 10 वर्षों के लिए कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर से प्रेरित थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मिशन के समर्थक थे। वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा स्थापित स्वतंत्र लेबर पार्टी के विदर्भ क्षेत्र के सचिव भी थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को उन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए समर्पित किया जो कृषि और कृषकों के लिए समृद्धि लाएगी। उन्होंने भारत कृषि समाज की स्थापना की। 1955 में फूड फॉर मिलियंस नामक अभियान शुरू किया और उन्होंने 1959 में विश्व कृषि मेले का सर्वप्रथम आयोजन किया था। 1958 में चावल की खेती की जापानी पद्धति से शुरुआत भी उन्होंने की। इस वर्ष पूरा भारत डॉक्टर पंजाबराव जी देशमुख इनकी 125वीं जयंती मना रहा है। क्योंकि डॉक्टर पंजाबराव जी देशमुख इन्होंने शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में पूरे देश में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए मैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती माया नारनोलिया, डिमांड फॉर रिवाइवल एंड कंजर्वेशन ऑफ नर्मदा रिवर। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। नर्मदा नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। यह नदी प्रदेश के 16 जिलों से होकर बहती है और इसकी जलधारा पर लाखों किसान, श्रद्धालु एवं स्थानीय समुदाय निर्भर है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करती हूँ। नमामि गंगे कार्यक्रम और विभिन्न राज्य स्तरीय नदी पुनर्जीवन पहल ने पर्यावरण संतुलन बहाल करने और स्वच्छ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि मैं इस सदन का ध्यान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मध्य भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली यह नदी अत्यधिक रेत उत्खनन, वनों की कटाई और अनियंत्रित प्रदूषण के कारण संकट में है। राज्य सरकार द्वारा नर्मदा सेवा मिशन के तहत सराहनीय कदम उठाए गए हैं, लेकिन पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करने, सतत जल प्रबंधन और जन सहभागिता को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इसी तर्ज पर मैं सरकार से मांग करती हूं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया जाए, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस कदम से नर्मदा का प्राकृतिक प्रवाह, उसकी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद मिलेगी। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस पवित्र नदी को जीवित करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करे और एक समग्र पुनर्जीवन योजना लागू करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। जय नर्मदा मैया, नमामि देवी नर्मदे। धन्यवाद। माननीय श्री डेरेक ओब्रायन, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री महाराजा संजोबा लिविसमैन, हेलो। Samba, sir, please. Sir, thank you, sir. Sir, Pandit Nehru gifted away Kabo Valley of Manipur to Yaswal Burma, now Myanmar, on 3rd March 1953. After having a meeting in Manipur with his counterpart, Mr. U Nu, then Prime Minister of Burma, this valley is a very resourceful and fertile landmass of nearly 22,210 square kilometers, and it had been once a part of Manipur Kingdom from as early as
1450 AD. The given away of Cabo Valley to Burma was the most unfortunate day in the history of Manipur because it was done without any prior approval of Indian Parliament or state endorsement or rectification. Moreover, Nehru completely ignored the terms and the conditions of the Treaty of Jandabu of 1826, and according to Cabo Valley Amendment of 1834, Burma agreed to pay a sum of rupees 500 Sikar rupees per month as compensation of Cabo Valley to the then King of Manipur, Sri Gambhir Singh. The said amount had been paid to Manipur till 1949. After 1949, with the merger of Manipur to India, the same amount was paid to Government of India till around 1953. Without knowing all these historical backgrounds, Nehru gifted away this resourceful valley to Burma. Moreover, because of this historical blunder, Manipur will never forgive Nehru and his party Congress. Now the valley is no more with Manipur, India, and no compensation is received yet. So I earnestly urge upon the India government through this house to examine the feasibilities of returning Cabo Valley to Manipur, India, or continue it's now question or the payment of pending compensation it's to over. the government or union government. Honorable Maharaj, it's over. Now it's a question hour.